Hello everyone, welcome to Apti Plus IS Academy. This is a video on daily topic-wise news analysis. We'll be covering the news from the Hindu as well as from the Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूज़ की उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में बेनिफिट हो सके. तो चलिए आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ मेगा webinar. So this is on 31st of May. The timing would be from 6 p.m. to 7 p.m. These are the theme of discussion, so do participate. For more details you can log on to our website, or you can refer to this WhatsApp number which is there in this video, or you can refer to the description section of this video where all the details have been given. Now coming to the today's topic list, today is 28th of May, and the topic which we'll be discussing is invasive charu muzzle, open app sources, open market operations, COVID-19 effects on the central nervous system, and farm rights to sell. So these are some of the important topic that is again relevant for you, and there would be MC question with explanation. जो मैंने कल के सवाल किए हैं उसके explanation भी आज करेंगे, right? Now the first is invasive charu muzzle. Basically this is there in the news in the Hindu, और केरला के बैकवाटर में इसकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा पाई गई है, और जो बेसिकली जो सीज़ है केरला की जो बैकवाटर रिवर्स हैं उसका जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हुआ है, राइट? सो विल सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. सो बेसिकली जो ये इन्वेजिव मुज़ल है दैट इज़ स्प्रेडिंग रैपिडली इन द केरला बैकवाटर. और बात करें इसके नेटिव प्लेस की तो इट हैज़ बिन ओरिजिनेटेड, दिस इज़ नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका कोस्ट, राइट? वहाँ से ये ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आई है. And survey shows that the presence of charu muzzle has been there in the Ashtamudi Lake, जो एक रामसर साइट है इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, और सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट यहीं पे हुआ है अष्टमुडी लेक इन केरला, राइट? सो दिस हैज़ बिन वर्स्ट हिट, एंड दिस अगेन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बिकॉज ये दोनों चीज़ आपसे लोकेशन वाइज और यहाँ पे जो इंसिडेंट हुई है उसको लेके पूछ सकते हैं. So this is the image of the muzzle which you can see. This is brightly black and brownish kind in color. So this is the front side and this is the back side of it. Now basically talking about their threatening. So this is threatening to the livelihood of the fishermen, and basically they are engaged in the molluscan fishes. Okay, so you have seen they are talking about the fisheries varieties. There's n number of varieties which are there in the fishes. So basically precisely the molluscan fishes has been hugely impacted. ना बात करें जो चारू मुज़ल है वो है क्या. बेसिकली अगर इसकी कलर की बात करें तो रिजेंबल फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन इन कलर विच यू कैन सी इन द पिक्चर. दिस इज स्लाइटली माइल्ड green and brown in color, and they are much smaller in size. So as you can see the man holding this, they are very much like close to more than 100 muzzles are there, right? So this is something it always reside in the bunches. ये हमेशा bunches में रहती है. So you can see, and this severely impact the health of the river. और जो color है that again varies from brown purple to the darker green, and it has been increased in the southern eastern United States, जहाँ पे फ्लोरिडा में फर्स्ट बार 1986 में इसको देखा गया था. So this is all about चारू मुज़ल. This is very 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 important for your prelims examination view, and especially इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन्वायरमेंट के कई क्वेश्चन सीधे यहाँ से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं. Now talking about the invasive species, होता क्या है invasive species? Basically invasive species are the species that are not native to a specific location, जो किसी एक specific location से नहीं होती है, and it has a tendency to spread, और उसकी जो degree है spread with a variation of the degree, and can cause damage to the environment, human economy and human health. तो इसका काफ़ी बेसिकली ट्रायंगुलर इम्पैक्ट है, तो सीवियर इम्पैक्ट करती है, और जिस तरह से इंडिया में अभी केरला में है तो उसको अभी रोकने की ज़रूरत है ताकि और कहीं ये ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे. ना मूविंग अहेड, व्हाट आर द रीज़न फॉर द स्प्रेड. तो कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, उनके मुताबिक एक जर्नल है बेसिकली एक्वेटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज. उन्होंने बताया कि जो चारू मुज़ल है दैट हैज़ बिन ट्रिगर्ड बाय द साइक्लोन ऑक्शी. ठीक है, दिस वाज ड्यूरिंग द region which struck there in 2017 basically, right? 2017 के टाइम से ही यहाँ पे स्प्रेड देखा गया जो साइक्लोन होती उसके वजह से, राइट? एंड इट इज सीवियरली इम्पैक्टिंग द हेल्थ ऑफ द रिवर, स्पेशली द बैकवाटर रिवर इन द केरला. नाउ कमिंग टू द ऐप ओपन सोर्स, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस में. व्हाट मेकिंग आरोग्य सेतु ऐप एंड ओपन सोर्स. Fine.
तो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ओपन सोर्स होता क्या है, ऐप की ओपन सोर्स के लिए क्या मतलब है, क्या प्राइवेसी इशूज़ कंसर्न हैं इससे। सो फर्स्ट, अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो एंड्रॉयड वर्जन है आरोग्य सेतु का, उसका ऐप ओपन सोर्स बताया है, राइट। And the decision would be basically help the developers to inspect the sources of the code, जो ऐप में किस तरह से चेंजेस हैं, मॉडिफाई है, जो इश्यूज चल रही थे प्राइवेसी को लेकर के, उसमें इससे मदद मिलेगी। तो बैकग्राउंड थोड़ा समझ लें। आरोग्य सेतु ऐप इज़ बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप, जहाँ पे कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग के थ्रू मदद मिलती है सरकार को। एंड दिस इज़ डेवलप्ड बाय एनआईसी, दैट इज़ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो साइट मेंटेनेंस होते हैं वो सारा एनआईसी के अंदर ही होता है। नाउ एवर सिंस जब आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुई थी 2020 में, तब से देखा ये गया है कि क्वेश्चन हैज़ बिन रेज रिगार्डिंग द प्राइवेसी, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो डेटा है उसको स्टोर किया जाएगा 180 डेज़ के लिए, बट देन ऑल्सो जो ओपन सोर्सेज थे वो लोगों को, मतलब बेसिकली एक्सपर्ट का कहना था कि जो ओपन सोर्स है वो बताया जाए, बट स्टिल इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो गवर्नमेंट की जो परमिशन आई है, उसमें ओपन सोर्स बता दिया गया है। नाउ एडवांटेजेस क्या होंगे ओपन सोर्स के, तो जो डेवलपर्स हैं दे वुड बी एबल टू इंस्पेक्ट द सोर्स कोड, जो सोर्स कोड है उसको वो इंस्पेक्ट कर पाएंगे एंड मॉडिफाई द फॉर द चेंजेस, कि कहाँ पे क्या चेंजेस हैं, दे वुड बी एबल टू फिगर इट आउट। अगर बात करें जो सोर्स कोड है फॉर द एंड्रॉयड वर्जन, दैट इज़ अवेलेबल फॉर द रिव्यू एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिंक जारी किया है जहाँ पे जो भी एक्सपर्ट है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके जो भी लूप होल्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ऑल डेवलपर्स एंड द रिसर्चर कैन विजिट टू द लिंक टू पार्टिसिपेट। वो लिंक बेसिकली they are there by the government of India website, so from there they can log in and participate, and the process of supporting the open source development will be managed by the NIC। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगेन मैनेज की जाएगी NIC से। so this is very an important organization for government of India, and government of India has also requested the developers to help to find the vulnerabilities and improve the order of आरोग्य सेतु ऐप। ओके, किस तरह से इसको और रोबस्ट बनाया जाए, सिक्योर बनाया जाए, ताकि लोगों में ट्रस्ट डेवलप हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल कर पाएँ। नाउ यूज़र्स की अगर बात करें, इस ऐप के जो यूज़र्स हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बेसिकली डेटा दिया है। उन्होंने अनाउंस किया कि जो मैक्सिमम केस हैं, जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, ऑलमोस्ट 98% ऐसे यूज़र्स हैं जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। और iOS की भी अभी नई वर्जन बनाई गई है, दैट विल बी सून लॉन्चिंग। गवर्नमेंट का कहना है विद इन वीक और 2 दे विल बी लॉन्चिंग द iOS वर्जन, एंड द ऐप विल बी अवेलेबल इन बोथ वर्जन, दैट इज iOS फॉर एप्पल यूजर्स एंड एंड्रॉयड फॉर ऑल द अदर यूजर्स, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल भी मिल जाएंगे आज के हिंदू में। द मोनेटाइजेशन क्वेश्चन, दिस इज़ बाय डी सुब्बा राव, इज़ द फॉर्मर गवर्नर ऑफ द RBI। तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अलावा और भी कुछ चीज़ों की बात की गई है, दैट इज़ अगेन देयर इन द न्यूज़, वी हैव बीन कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग दैट। तो जो हमारा फोकस होगा वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे होगा। सो अभी प्रेजेंट में जिस तरह से सिचुएशन हुई है कोविड-19 के बाद, तो RBI ने कुछ लिक्विडिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपीस के आसपास इन्फ्यूज़ किया है मार्केट में, ताकि बैंकिंग सिस्टम में एक लिक्विडिटी बनी रहे। और गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो RBI जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जिसको जी सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, उसको बाय करके ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी लाने की कोशिश कर रही है। नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो RBI करती है बेसिकली। जो सेंट्रल बैंक किसी भी देश की होती है, तो हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ RBI, राइट। सो बेसिकली दे कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और जो OMO है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, दैट आर कंडक्टेड बाय RBI फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू एडजस्ट द मनी सप्लाई कंडीशंस, राइट। तो सेंट्रल बैंक जो सेल करती है जी सिक्योरिटीज़ को टू रिमूव लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम एंड टू बाय जी सिक्योरिटीज एंड टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द सिस्टम, दोनों चीज़ों के लिए किया जाता है। जब लिक्विडिटी लाना हो मार्केट में तब भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस होती है, और जब लिक्विडिटी कम करना हो तब भी OMO का ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है, राइट। एंड दीज ऑपरेशन आर ऑफन कंडक्टेड ऑन डे टू डे बेसिस, डे टू डे बेसिस पे की जाती है, कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका।
एंड आरबीआई कैरी आउट द ओएमओज थ्रू कमर्शियल बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके थ्रू ये ऑपरेट की जाती है, एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक बैंक। कोई भी पब्लिक बैंक से ये इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में डील नहीं किया जाता है। सो दिस इज अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट वेयर स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बात करें ओएमओ की, तो जो अलग मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जैसे रेपो रेट है, सीआरआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी है, ये सारी चीज़ों को मॉनेटरी पॉलिसी मनी सिस्टम के लिए, रेगुलेशन के लिए, जब लिक्विडिटी लानी हो मार्केट में या बेसिकली लिक्विडिटी कंट्रोल करनी हो मार्केट में, तो आरबीआई इन सारे मेजर्स का मदद लेती है। ना व्हाट आर द एडवांटेजेस, ओएमओज जो हैं, जो हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? सो दे आर प्राइमरली टू मेंटेन द एम्पल लिक्विडिटी इन द सिस्टम। और जो एक्शंस है अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन ट्विस्ट ली गई थी आरबीआई की तरफ से, वो ऑल्सो इनकरेज करती है कि इस तरह के जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उसको बढ़ावा मिले। और जो सिमल्टेनियस परचेज है दैट ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट, एंड जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं दैट कैन अगेन लीड टू द इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक स्पेंडिंग। तो सरकार की पूरी कोशिश है जो हमारी इंटरेस्ट रेट है उसको भी कैसे रिड्यूस किया जाए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बने और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके, राइट। Now coming to the other important topic, that is COVID-19 effects on the central nervous system। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर COVID-19 का भी इम्पैक्ट देखा गया। कुछ रिसर्च आए हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो रिसर्चर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सिनाटी बेसिकली और इटालियन इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने कुछ न्यूमरोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखे हैं पेशेंट्स में। तो उन्होंने बताया है कि इस तरह के पेशेंट्स में CNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी इम्पैक्ट है। तो सिनेनाटी इज़ अ यूनिवर्सिटी इन ओहायो डिस्ट्रिक्ट में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड द स्टडी रिवील्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम द ह्यूमन बीइंग, राइट। बात करें स्टडी की जो फाइंडिंग की गई है, तो जो बेसिकली जो कोरोना वायरस की जो डिजीज़ है एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और प्राइमरीली अटैक करती है हमारे लंग्स को। बट जिस तरह से रिसर्च आगे पब्लिश हुई है उनके मुताबिक ये एब्डोमेन, स्किन एरिया और ब्रेन, ये तीनों चीज़ों को भी इम्पैक्ट करती है। एंड न्यू स्टडी हैज बीन परसिस्टेंट विद द वायरस इम्पैक्ट कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा CNS है, वो काफ़ी सीवियरली इम्पैक्ट होता है। बेसिकली अगर बात करें जो न्यूली डिस्कवर्ड पैटर्न्स है उसमें डॉक्टर्स ने बताया कि जो एसोसिएशंस हैं कोविड पॉजिटिव पर्सनस के, देयर अगेन विथ इंटरवेंशन टू द CNS, स्किन एंड अदर एब्डोमिनल डिजीजेस। तो इन्वेस्टिगेशन ने फाउंड किया कि जो 59% ऑफ पेशेंट्स हैं दे हैव रिपोर्टेड अल्टर मेंटल स्टेट। सो 59% के मेंटल स्टेट में इम्पैक्ट हुआ, 31% को स्ट्रोक हुई है, एंड मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखे गए। और पेशेंट्स हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द हार्ट एक, 12% ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें हार्ट एक भी हुआ, सीजर्स हुई है, डिजीनेस हुई है 4% लोगों में, एंड अदर सिम्टम्स ऑफ विटनेस अपार्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी। बिकॉज अभी तक COVID-19 में जो मेजरली इम्पैक्ट होती थी बॉडी पार्ट्स वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती थी, बट आफ्टर द रिसर्च फाइंडिंग इट शोज कि इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग CNS, स्किन एंड अदर एब्डोमिनल एरियाज। Now, farmer right to sell. Basically, this is a good article which is written in Hindu by M. Venkaiah Naidu, is a vice president of our country. तो उन्होंने फार्मर राइट के बारे में बात की है कि किस तरह फार्मर को पूरी राइट होनी चाहिए अपने फार्म प्रोड्यूस को सेल करने की, राइट। सो फार्मर आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द फूड सिक्योरिटी इन आवर कंट्री एंड दे डिजर्व द फ्रीडम टू मार्केट। बेसिकली जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको सेल करने की जो चॉइस है वो उनके पास होनी चाहिए। एंड टुडे India is a leading producer of the variety of agriculture and allied produce because of this farmer, and we have a very substantial contribution in terms of the export. तो बात करें अगर बेसिकली फार्मर्स की, तो वो दिन में, रात में, विंटर, समर, एवरी सीजन दे आर वर्किंग हार्ड, बट दे आर नॉट गेटिंग देयर एडिक्वेट रिटर्न्स। जितना वो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको उतने प्रॉफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, राइट। तो रिस्ट्रिक्शन बताई गई है फार्मर्स को लेकर के। जो APMC है, जो हर स्टेट ने अपने हिसाब से एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटीज़ बनाई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेशन हुआ है। जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वायलेशन देखी गई है, और जो राइट ऑफ फार्मर है अगेन टू सेल टू प्रोड्यूस ऑफ देयर चॉइस इज़ नॉट बिन गिवन। उनको ज़बरदस्ती कहीं भी किसी भी रेट में अपने जो प्रोड्यूस है उनको बेचना पड़ रहा है। एंड फार्मर कंटिन्यू टू बी द विक्टिम ऑफ द बायर्स मार्केट। तो होता क्या है कि बायर मार्केट में जंक्स में बेसिकली वो जो रेट चल रही है उस हिसाब से सेल किया जाता है, ना कि फार्मर्स के प्रॉफिट को या भी जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो एडवर्सिटीज़ हैं, उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न दैट हैज़ बीन रेज्ड।
उसके अलावा कुछ और कंसर्न की अगर मैं बात करूं तो फार्मर डू नॉट हैव द फ्रीडम टू सेल ऑफ देयर चॉइस इन द नेबरहुड। वो अपने पड़ोस में भी उस चीज़ को नहीं बेच सकते, दे हैव टू गो टू द APMC, वहाँ पे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन दे कैन ओनली सेल इट। जो रेम्यूनरेटिव प्राइजेज है, जो फेयर प्राइजेज है ऑफ द फार्म प्रोड्यूस इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू द फार्मर। बात करें जो फार्म इनकम की तो वहाँ पे दे आर द मर्सी ऑफ द मार्केट। जो मिडल मैन है उनके मुताबिक या मनी जो लेंडर्स हैं उनके मुताबिक उनको उनके अपने सारी चीज़ों को सेल करना पड़ता है और यहाँ पे जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, राइट। अब बात करें फार्मर्स एंड कंज्यूमर आर द सफरर ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव प्रोक्योरमेंट एंड द मार्केटिंग ऑफ द फार्म प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो एंड यूज़र है, जो कंज्यूमर है उसको, प्लस जो फार्मर है, इन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलनी चाहिए, ना कि जो मिडिल मैन है और जो मनी लैंडर्स हैं इनको। ना वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट ने बेसिकली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटाने चाहिए और प्रमोट करना चाहिए कि फ्री मूविंग ऑफ मार्केटिंग हो सके, फार्म प्रोड्यूस कहीं भी जाके वो बेच सकते हैं। एंड देयर इज अ अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्हांसिंग द क्रेडिट सपोर्ट। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाई जाए ताकि जो स्टोरेज है वो कैपेसिटी इंक्रीज हो सके और जो क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम है फार्मर को जो मिलनी चाहिए वो उनको पूरी तरह से मुहैया की जानी चाहिए। And the restriction of basically revision in the restriction law will again remove the hurdle। बहुत सारे जैसे हमारे APMC हैं उसमें जो भी हर्डल्स है उसको रिमूव करें, या स्टेट के कोई ऐसे लॉज हैं जिनको रिवैम्प करके फार्म वेलफेयर के लिए ज़्यादा ध्यान देते हुए उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, राइट। चलिए, और मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है फॉर डेली आंसर राइटिंग चैलेंज। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाएं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो हर दिन यहाँ पे मॉर्निंग में आपके क्वेश्चन पोस्ट होते हैं और आप आंसर जो हैं वो टेलीग्राम में बेसिकली 6 PM तक हमें दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। नाउ कमिंग टू द MCQs, जो कल के जो सवाल हैं उसके आंसर पहले देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिकली उसके आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है बी। मैंने जो पूछा था आपसे तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है दैट ऑन मार्च 2020 ऑन द साइडलाइन ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे celebration, जो ग्लोबल कोalition ऑफ द बायोडाइवर्सिटी वॉज लॉन्च्ड और दिस इज द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द यूरोपियन कमीशन। तो मैंने आपसे पूछा था कि इसको लॉन्च किसने किया है, तो यूरोपियन कमीशन ने लॉन्च किया है एंड द कोalition वॉज नेम्ड एज द यूनाइटेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। होप दिस विल हेल्प यू इन टू सॉल्व द अदर क्वेश्चन एज वेल। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, मैंने बेसिकली आपसे पूछा था क्वेश्चंस जो हैं वो टर्म्स कहाँ यूज़ होते हैं। तो टीपू सुल्तान ने ऑर्गेनाइज किया था रॉकेट आर्टिलरी जो ब्रिगेड्स हैं उनके लिए एंड ही एक्सपैंडेड द नंबर ऑफ सर्विसेज टू द वेरियस क्वेश्चन फ्रॉम 1500 टू ऑलमोस्ट 5000। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी। Now for today's question, so the first question is coming from art and culture. With reference to Odissi dance, consider the following statement. It is one of the position of the Tribhanga, intimating the square and basically masculine stances where weight are bodily equally balanced. And the other position of the basically chalk is in the feminine stances where the body deflected to the neck, torso and knees. And third, the dance is in the form of mobile sculptures. If it is too fast, you can pause this video and you can read the statement. So you have to tell me which among the following is the correct answer. 1 and 2, 3, 1 and 2 or both, all of these, 1, 2 and 3. So whatever you feel is the correct answer, do let us know in the comments down below. Now the second question is from the current affair. IITFC program was recently seen in the news, is launched by Ministry of Agriculture, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Tourism or Ministry of Health. Hope you have read this. This is very easy. If you don't know, this might be tricky for you, but I would like to know how many of you are aware of this. So do let me know your answer in the comments down below, right? So this was the question for the day. And if you like this video, do not forget to thumbs up and subscribe our Apti Plus Academy for civil services for more informative videos. There are many playlist sections which is there where you can visit and get benefit from out of it, right? So do check out the YouTube channel of the Apti Plus Academy for civil services. And I sincerely thank you for listening to this video. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.